Good afternoon everyone. Myself Abhishek Kumar, class speakathon coordinator of MSc first year GJUST Hisar. As you all know, we have gathered here to have a group discussion on the topic how to make the internet a safer place. The topic today we are discussing is a topic of current relevance as well as it is a very interesting topic. So therefore, I invite you all to have a group discussion on this topic. Myself Varun, I am from MSc Mathematics first year. Myself Monica, MSc first year. Myself Kamal Sharma, MSc Mathematics from first year. I am Tarun from MSc first year Mathematics. I am Garima, student of MSc Mathematics first year. I am Arzu from MSc Mathematics first year. Myself Sushant from MSc Mathematics first year. I am Sachin from MSc Mathematics first year. I am Pooja from Mathematics first year. Today's world, our daily life based on the internet. Everybody is depend on internet. Many people use the internet to share their personal information such as credit card numbers, passwords, photos, videos, etc. So privacy is an important issue for internet users because these personal information can be stolen with the help of some techniques such as hacking, phishing, etc. And then it can be misused. So we can say that internet is a threat for our personal information and there is a need to make the internet a safer place. मैंने देखा सचिन और गरिमा ने बताया है कि इंटरनेट जो है वो थोड़ी सी सेफ नहीं है क्योंकि कई बार क्या कहते हैं कि जो मतलब अनजान व्यक्ति होते हैं वो अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स दे देते हैं और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी कोई पर्सनल फाइल जो है वो किसी गलत उसमें चली जाती है क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता कि हम जो साइट यूज कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम साइट यूज करते हैं वो दिखती भी ओरिजिनल है लेकिन वो ओरिजिनल जैसे बिल्कुल नहीं होती और उस पर हमारी जैसे ही हम कुछ डालते हैं वो सारा चोरी हो जाता है और फिर वो हमें परेशान भी करता है। तो ये जो है इंटरनेट का सबसे बड़ा दुख है कि अगर आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है तो वो बहुत खतरनाक चीज है। As we all know today, internet is playing very important role in educational institutions in the field of education as well. For example, at first before the era of COVID-19, there was only medium of offline education available to almost all the citizens or as you will say to all the students of our country. But the era of COVID-19 has also given us an opportunity to gain online education as well. For this, many educational institutes are providing online education. There are many benefits of providing online education. For example, the online education is cheap. The main thing is this online education is cheap and most of the students in our country cannot afford higher prices courses. Therefore, they can easily learn through online education. Secondly, we can focus on this thing that it is accessible to almost whole country. Because of COVID-19, almost 80 to 85% students of our country have internet services. Therefore, internet is playing a very important role in our educational system. Thank you. आजकल हम इंटरनेट के बारे में सिर्फ 4% जो होते हैं वो विजिबल होता है हमारे, लेकिन जो 96% होता है वो अनविजिबल होता है, जो हमें पता नहीं होता। जैसे कि डार्क नेट वगैरह हो गया, डार्क वेब हो गई, इनके अंदर क्या होता है, जो साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो इन्हीं के अंदर होते हैं। इन्हीं के अंदर जैसे डार्क वेब है, उसका एक पार्ट है डार्क नेट, उसके अंदर जो एनसीआरबी है उन्होंने मतलब बनाया था ये। इसके अंदर साइबर क्राइम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर मतलब स्मगलिंग होती है ड्रग्स वगैरह की, और जो चोरी के जो पैसे होते हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा वो मतलब जा सकते हो, और बच्चों के लिए भी मतलब काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसलिए मतलब जो डार्क वेब होता है वो हमारे लिए ज्यादा सेफ नहीं होता है क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है कि वो उसको कैसे यूज करता है। अगर उसके पॉजिटिव वे है ना, उसके नेगेटिव वे भी बहुत ज्यादा है। उसको साइबर क्राइम की तरह अगर हम यूज करने लग जाएंगे तो हर एक जो हैकर वगैरह होते हैं वो उसी के ऊपर बैठे रहते हैं, जो कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो इजीली कर सकते हैं। I don't agree to Monica because the Constitution of India has provided us right to freedom. Yes. Therefore, there should not be any restriction on
internet, or you might say darknet. Instead of this, everybody should have reach on it and should have complete independence how to access it. लेकिन अगर हमने सबको सब कुछ करने की फ्रीडम दे दी तो अभी जैसे जो हाल फिलहाल के इंसिडेंट्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले वो कॉमन हो जाएंगे भाई. Instead of restricting people to use internet, we should make our investigation agencies more and more advanced. Instead of restricting people to use that. बट इसके अंदर जो डार्क नेट होता है, इसके अंदर अगर हम हर एक यूज करने लग जाए तो इसके अंदर हैकर इतने ज्यादा होते हैं कि वो इजीली जो बैंकिंग वगैरह होते हैं उनकी जो हम अपने कार्ड्स वगैरह होते हैं उनको इजीली हैक कर सकते हैं, और जो बिजनेस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो भी वो इजीली से हैक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए मतलब हार्मफुल हो सकते हैं. But I don't agree. The reason was simply that instead of making people strict on that issue, why not we spread awareness among people? We should spread awareness among people and let them use what they want. मैंने बताया कि डार्क वेब की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो अब पूछना है कि उसकी जरूरत ही क्यों थी. देखो जैसे कि हम मानते हैं कि डार्क वेब की जरूरत जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती और उनको एक्सेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डार्क वेब जो है वो एक ऐसा इंटरनेट है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. अगर आप वहां जाके कुछ गलत होता है आपके साथ तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. लेकिन इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि HTTP जो साइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है हम उन्हें यूज करें, हम डार्क वेब की तरफ जाए ही ना. वहां कौन जाता है, वहां जैसे हमारे साइबर क्राइम में जो काम करते हैं वो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो जाते हैं डार्क वेब पे ताकि वो ढूंढ सके कि कौन कौन क्या क्या फ्रॉड कर रहा है और क्या क्या एक्टिव है दुनिया में. जो HTTP साइट्स होते हैं उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं डाली जाती, लेकिन डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया की 100% इंफॉर्मेशन एक्टिव है. ये तो वही है कि अगर ना हो तो नुकसान ये है कि जो दुनिया की जो इंफॉर्मेशन आपस में वो कन्वर्ट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो हाँ तो जनरल पीपल को यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, अगर उनके पास इतनी अवेयरनेस हो तो वो यूज कर सकते हैं. और डार्क वेब के ऊपर जो है इतने वो होते हैं कि मतलब अगर आपको कोई सामान चाहिए और वो किसी भी साइट पे नहीं है तो आप डार्क वेब पे जाके देख सकते हो कि वो सामान आपको अवेलेबल मिलेगा. और जितनी भी हाँ अवेयर करना चाहिए, लेकिन तभी तो कह रहे हैं कि अभी इतनी वो नहीं हुई है, इतनी अवेयरनेस भी नहीं हुई है और इतना कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता. लेकिन अभी ये हो सकता है कि हम डार्क वेब को जितना हो सके उतना कम रिस्ट्रिक्ट करें और अपने जो पर्सनल जो चीजें हैं वो हम अपने गवर्नमेंट के सिक्योर सर्वर्स में ही स्टोर करें. ठीक है, और एक ये भी होता है कि जो बाहर के देशों में अगर हम लोग डाटा वगैरह स्टोर करते हैं तो ये चीजें ध्यान रखें कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. I agree to some extent to Varun that darknet, before using darknet, we should be aware of its uses as well as misuses. Therefore, it is the responsibility of government as well as NGOs to spread awareness about the darknet, its uses, what are its misuses, how to access it, and all these things. I think there is one more problem with internet. The problem is that it is also a major pollutant for the whole world. If it is has been showed in a survey, recent survey, that if internet would be a separate country, then it would be the 6th highest polluter in the country. Communal riots, it may be, or it may be any other riots due to religion, mainly as we observe in our daily life. That should be controlled, and for this, government should take proper steps. जैसा कि First start. Okay, start. ना तो हम लोग चल 3, 2, 1 स्टार्ट. हाँ कर दे. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास तक किसी भी को लेकर पूरी पॉसिबल नहीं हो उसको किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए. साइबर क्राइम्स बहुत होते जाता है. अगर हम डार्क नेट का यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए.
मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत है, तो आजकल मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर एक VPN सॉफ्टवेयर आता है जो आपकी लोकेशन और आपकी आइडेंटिटी को छुपा सकता है। तो अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है सेफ नहीं है, तो आप उस VPN का यूज कर सकते हैं, जिसके आपका डाटा कुछ हद तक सेफ हो सकता है। स्टार्ट। Okay, friends. Now we had a good discussion, and now it's time to conclude our discussion, so we are going to conclude. ठीक है, एक मिनट, ठीक है. Okay, friends. Now I take opportunity to conclude the discussion, and we had a good discussion and very smooth discussion, and we reached the consensus. And I will say that for conclusion, by providing proper education, we can make the internet safer, and by promoting the ethical hacking, we can make the internet safer. Okay, thank you. आजकल जैसे अपने पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने लगे हैं, पर उन्हें इतनी अवेयरनेस है नहीं। तो अगर कोई किसी का फोन आता है, वो कोई पूछता है OTP वगैरह, तो वो तभी बता देते हैं। मतलब ऐसे में फिर वो हैकिंग की मतलब हो भी सकते हैं कि उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो इसलिए इंटरनेट को सेफ बनाना जरूरी है। हाँ, मतलब कई बार कोई एजुकेटेड पर्सन भी इसके नेटवर्क बैंकिंग में उनके साथ भी फ्रॉड होता है, जैसे कि टेलीग्राम पर भी थोड़े दिनों पहले हुआ था। हाँ, जैसे टेलीग्राम पे भी हुआ था कि हमारे बता देते सर कि कोचिंग की क्लासेस है, उसके सारे के सारे लेक्चर्स टेलीग्राम पे फ्री में पोस्ट कर दिए, लेकिन वो क्लास पेड थी। तो इस वजह से उसको जो उसके सेंटर था जिसका भी था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये चीजें थोड़ी सी वो होती है कि मतलब कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और इनके ऊपर बाउंडेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो मम्मी पापा है वो OTP वगैरह शेयर कर देते हैं, तो इस चीज के लिए हमें हमारे मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि ये जो है कि ऐसे अगर कोई OTP वगैरह मांगे तो ना दे, चाहे कोई भी हो। आजकल के बैंक हमेशा एड्स वगैरह में भी कहते हैं कि हम कोई OTP किसी से नहीं मांगते, तो किसी को भी OTP नहीं देना चाहिए किसी भी हाल में। मैं तो ये कहना चाहूंगा वरुण को कि जरूरी नहीं है कि OTP के थ्रू ही आपके जो बैंक से पैसे कटते हैं। कई बार क्या होता है कि OTP भी नहीं आता और बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो उसमें आप किसकी गलती निकालोगे, मम्मी पापा की निकालोगे, किसकी वो निकालोगे? हैकर्स ना यूज कर देते थे, हमें पता नहीं होता कि कोई लिंक सेंड करते हैं, हम लोग उसे ओपन करके देखते हैं क्या होता है, उसमें डिटेल का इंटेलिजेंस जब ओपन करते हैं तो किसी के फोन में जो अपना होता है वो सारा उसी में जमने लगता है। तो जो OTP आते हैं वो हमें पता नहीं होता कि हमने किसी के साथ शेयर किए क्या, तो उसको भी उसके पास चली जाती है, इसलिए हमारे फोन में आए उसको पता चल जाता है, तो इससे हैक हो जाता है। मैं भी सारी बात से सहमत हूँ। अगर हम खुद भी अवेयर होंगे और अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स में जो भी अगर हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो हम तो पढ़े लिखे हुए हैं, अगर हम उनको अवेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरनेट का हम सेफली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम OTP वगैरह आता है वो नहीं मतलब शेयर करेंगे, या फिर कोई लिंक वगैरह आता है तो उसके ऊपर क्लिक करना जरूरी थोड़ी ना है। अगर कोई जरूरी काम का हो तो ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना। उसके बारे में पता ना हो उससे पहले भी उसे यूज नहीं करना चाहिए कि किस काम का है ये। जैसे बट एज ए रिस्पांसिबल सिटीजन हमें पता चलता है कि वो साइट फ्रॉड है तो हमें उसकी रिपोर्ट भी करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत वो होता है कि मतलब अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो उससे जो है साइबर क्राइम जो है वो जल्दी से जल्दी उस साइट पे किसके पास रिपोर्ट पे, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास भी ऐसे आते हैं हम इग्नोर ही करते हैं। नहीं, आजकल जो है जो गवर्नमेंट है वो कैंपेन चलाती है कि कभी कई बार मोबाइल पे मैसेज आता है कि अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कॉल आए या फिर आपके पास कोई ऐसा इनडायरेक्ट लिंक आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। वो नंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आता है और वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। मैं नहीं कहता कि आप मैसेज देख के किसी के पास भी कॉल करो, अगर आपको कॉल करनी है तो आप इंटरनेट पे जाओ और गवर्नमेंट की सिक्योर्ड साइट यूज करो। मतलब ये नहीं कि जैसे आजकल बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स होती है, जैसे अगर हम कभी होम फिल करते हैं तो एक सरकारी रिजल्ट नाम की साइट यूज करते हैं, वो भी एक थर्ड पार्टी साइट है। अगर उसका यूजर चाहे तो वो अपने लिंक्स में कुछ भी ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूजर ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर जितना हो सके हम उसके खुद की साइट पे जाके और खुद चेक करें कि वहां पे फॉर्म निकले हुए हैं या नहीं, ना कि किसी थर्ड पार्टी साइट पे जाके चेक करें। You all have pointed to the negative sides of OTPs. That's one time password.
But there are some positive points about OTP also. If you forget, suppose you forget your PIN of your ATM card, then you simply get out money from ATM card with the help of these OTPs. हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओटीपी अच्छी है, लेकिन ओटीपी को शेयर करना अच्छी बात नहीं है। उस चीज के बारे में अवेयर होना तो जरूरी है ना। हाँ। अगर हम हर एक चीज का ये मतलब ये सोचेंगे हाँ ओटीपी अच्छा भी है और कोई बात नहीं छोड़ो इसको, तो उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं आएगी। अगर हम अवेयर किसी को करेंगे ही नहीं, हम मतलब थोड़े बहुत सिटीजन मतलब पढ़े लिखे हैं तो हमें कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए ना। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ अलग सा कुछ करना चाहिए, जैसे कि हर एक लोग उसको बारे में पता चले, जो भी कुछ लोग वगैरह शेयर ना करें। लोग देखते इसका और वो यूज करते हैं, इसका खाता में जो होता है वो निकाल देते हैं और इसके बारे में उसका पता नहीं था। पहले क्या होता है इसके पास आता है वो ये होता हाँ मेरे को तो ये मिलेगा वो मिलेगा, किसी को बताता नहीं, ये हमें शेयर करना चाहिए कि मेरे पास ऐसे ये आ रहा है तो हम क्या करें, तो उसके बारे में हमें पता होगा तभी कर सकते हैं। I want to add one more point. That is, before some years and before you may consider 10 to 20 years ago, there was no internet and there was no internet connection as well as internet transactions. You may say online transactions. Yeah. And at that time there was no fraud, internet fraud at that time, and every transaction was almost secured. But then why shall we use internet banking? But that restricts us. But because if you want to share something to your cousin or something which is so far from you, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए भी आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आपके कजन का भी टाइम वेस्ट होगा जो उस बैंक से पैसे निकलवाएगा। तो इस वजह से इंटरनेट बैंकिंग जो बनाई गई है वो इसीलिए वो होती है। हाँ, जैसे ये कह रहे हैं कि मुसीबत में काम आता है। अब अगर कहीं हम बाहर चले जाएगा और हमारा वॉलेट वगैरह भी गुम हो जाएगा, अगर हमारे पास फोन है तो हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, पैसे वगैरह निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी होती है। Suppose a person goes to a location where internet is not working and he is standing outside a railway station, right? And he wants to do a online transaction that is compulsory for him at that moment of time. Then he thinks about that the government is providing free Wi-Fi on the railway station, therefore I shall use it. But at that moment of time, the hackers are waiting whether a person sign up or sign in the Wi-Fi and do transaction. As soon as he tries to do the transaction, he makes in login and he does online fraud. Yeah, that's the good point. Because the railway station Wi-Fi are always open and they will connect to anything and anytime and everywhere. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उसके जो जहाँ ये लिखा होता है ओपन वाईफाई, तो वहाँ उसके नीचे एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को कि प्लीज डोंट यूज बैंकिंग और एनी इंटरनेट ट्रांजैक्शंस फॉर दिस ओपन वाईफाई। हमें प्राइवेसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, इसको जितनी जरूरत हो उतनी ही यूज करें। जैसे मान लो कि जैसे कि आपको अगर इम्पोर्टेंट कोई ट्रांजेक्शन करनी है और बिल्कुल कोई हॉस्पिटल में बीमार है तो उस टाइम करने की जरूरत है, और सपोज करो कि आपका इंटरनेट खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे कि स्टेशन आपके नजदीक है? तो मैं बता रहा हूँ आप क्या करोगे उस टाइम पे। आजकल जो है बैंक जो है वो बिना कार्ड और बिना उसके इंटरनेट के भी मनी प्रोवाइड करवाते हैं। आप कभी एटीएम मशीन में जाओगे तो वहाँ पे होता है कि विद कार्ड और विदाउट कार्ड के ऑप्शन होते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल ये चीजें, तो रेलवे स्टेशन पे मोस्टली होते हैं। तो वहाँ पे जाके हम हमारे पेरेंट्स के नंबर वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर हमारे कार्ड में है तो हम हमारे कार्ड से निकलवा सकते हैं, अगर हमारे में नहीं है तो हम कॉल करके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आपका नंबर दे दो या आप हमारे कार्ड में ट्रांसफर कर दो। इससे हमें ना तो इंटरनेट यूज करना पड़ेगा और ना ही कुछ को। हमने इंटरनेट की वजह से होने वाले फ्रॉड्स के बारे में भी डिस्कस किया, लेकिन इंटरनेट को सेफ बनाने के लिए हमें खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, कोई भी कंटेंट फेक न्यूज वगैरह ज्यादा वायरल नहीं करनी चाहिए। क्या कि हमारे पास तक किसी भी बोले की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो, उसको किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। साइबर क्राइम्स बहुत होते जाता है। अगर हम डार्क नेट का यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए।
मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत है, तो आजकल मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर एक VPN सॉफ्टवेयर आता है जो आपकी लोकेशन और आपकी आइडेंटिटी को छुपा सकता है। तो अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है सेफ नहीं है, तो आप उस VPN का यूज कर सकते हैं, जिसके आपका डाटा कुछ हद तक सेफ हो सकता है। ठीक है। Okay friends, now I take opportunity to conclude the discussion, and we had a good discussion and very smooth discussion, and we reached the consensus, and I will say that for conclusion, by providing proper education we can make the internet safer, and by promoting the ethical hacking we can make the internet safer. Okay, thank you.